Namaskar and good evening. I am Ramprapanna Bhattacharya from Indian Classical Music Circle, ICMC, and I heartily welcome you all to the second session of the second day of our week-long celebration of Ustad Vilayat Khan Sahab Memorial Week. We from ICMC, we all are immensely grateful to all respected musicians and music lovers who have supported us with their presence, blessings, and encouragement. I will not go, into detailed introduction. I will welcome our respected guests straight away, so that we can have the actual discussion and interactive session and have some insight on Ustadji's music. First, I heartily welcome Pandit Harvinder Sharma ji, who has kindly agreed to join us from Jalandhar. Very respected and Please correct, I am from Chandigarh. Chandigarh. Yes. Sorry. Yeah, Chandigarh. So we are much thankful, Panditji, to you for joining us and Yes, sir. enlightening us with your music and your experiences and insight. I would like to welcome Pandit Ashim Chaudhary ji also, who is here with us today. Ashim da, pranam. He has joined from Namaskar. Kolkata. Thank you very much to be a part of this wonderful endeavor. And I must welcome Pandit Harvinder Sharma ji, who is like our God and our Guru, and he is the truest representative of Imdad Khani Gharana in that sense, so that we can follow his directions and all. So I'm very much thankful, Rambhai, for this wonderful session and be a part of this session. So Pranam Pandit ji. बहुत बहुत शुक्रिया. I'm so बहुत ही please, I'm please, so please. I'm so blessed to have you in this session. You are such a wonderful artist, and I have great respect for you and your playing. We are really fortunate to have you, Dada, today. Also, we are having my younger brother Sharanjit Singh Mand, who is a very talented sitar player based in Canada and a prime disciple of Pandit Harvinder Sharma ji. We heartily welcome you all on behalf of ICMC. Thank you for joining, and now we will start our discussion. Thank you again. So let me start with that we are remembering our God of sitar, Ustad Vilayat Khan Sahab, and in truest sense that his blessings are with us because we are the students of Imdad Khani Gharana, and his Baj, we are followers of his Baj and style, and we at present he is being represented by some great maestros, one of whom is with us, Pandit Harvinder Sharma ji. You are most welcome, Pandit ji. And please narrate the story. आप थोड़ा बताइए कि आपको पहली बार कब उस्ताद जी का वादन सुनने को अवसर हुआ और कैसे करके आप उनसे उनका वादन से प्रभावित हुए और कैसे आपका जर्नी शुरू हुआ. प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया. स्वागत करता हूं जो भी आज इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सर्कल के पेज पे आए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. बहुत संगीतज्ञ, बहुत गुणी लोग कल भी इसमें शिरकत किए थे और आज भी आई होप एवरीबडी इज़ देयर. तो उनके आशीर्वाद लेते हुए ब्लेसिंग से जो भी थोड़ा कुछ मैं सीख पाया या थोड़ा कुछ जो बोल पाऊँ वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है. सबसे पहले तो शुक्रिया for taking this initiative by Indian Classical Music Circle to host and to celebrate week-long ceremonies, week-long festivals where Asim Dada will be also playing tomorrow, and there are so many young and talented artists of our country. So I'm very, very happy, and I'm really waiting for tomorrow onward sessions to listen to them, because you are our future. You see, whatever little we could do,
and you are carrying this great tradition of Ustad Ji and Imdad Khani Gharana. So I'm very, very happy to meet you all. Thank you so much once again. You see, I belong to a family where my father used to play sitar, and we came to Chandigarh in 1962. I was 5 years of my age, and because he was teaching in a college, in the very premier government college for girls in Chandigarh. So many students used to come to home just to, as anyway, a musician's home is filled with the students. They used to come and practice, and my father used to teach. And I was not easy, but it's a story of every musician's family that while playing or just moving here and there, the music is in your ears, and you start grasping even before any formal training will take place. तो वो करते करते ये कि मेरा सितार अचानक से ऐसे ही शुरू हो गया. आई वाज अबाउट 5 और 6 years ऑफ माई एज. तो उसके बाद वो पिताजी को अचानक से पता लगा कि क्योंकि एक दिन मेरे से वो सितार का एक तार टूट गया था. तो देन ही आस्क्ड माय मदर दैट हु इज टचिंग और प्लेइंग माय इंस्ट्रूमेंट इन माय एब्सेंस, एंड शी टोल्ड दैट ही इज प्लेइंग. तो उन्होंने मुझे तो ये था कि मुझे वो मारेंगे क्योंकि मैंने आई हैड डैमेज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट. बट उन्होंने बड़े प्यार से वो मेरे को बोला कि अच्छा सुनाओ क्या आता है तुम्हें. तो इस प्रकार जो भी वो स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे, सो आई रिपीटेड दोज लेसन्स. सो ही वाज सरप्राइज्ड अ बिट. और फिर से मेरा उनसे जो भी तालीम था उनसे शुरू हो गया. और उन दिनों बहुत ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी तो था नहीं आज की तरह कि आज तो मेरा 2.5 साल का ग्रैंड सन है. ही कैन ओपन द यूट्यूब एंड ही कैन सर्च व्हाट ही वांट्स टू लिसन और ही वांट्स टू सी. उन दिनों में तो क्या था, कुछ भी नहीं था ऐसा, और डर भी बहुत लगता था. ले दे के एक थोड़ा और बड़े हुए तो घर में एक ट्रांजिस्टर था. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई डोंट नो, मे बी दैट वाज काइंड ऑफ एन एसेट टू एनी होम कि उसको काफ़ी ऊंचा रखते थे वो, ताकि बच्चे तोड़ ना दें. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू द ट्रांजिस्टर एंड स्विच ऑन टू लिसन काइंड ऑफ म्यूजिक वी वांटेड टू लिसन. तो वो करते करते थोड़ा स्टूल रख के या कुछ चेयर रख के हम वहाँ तक पहुँचते थे और उस ट्रांजिस्टर को लेके फिर कुछ कुछ सुई घुमाते रहते थे. तो शॉर्ट वेव पे उन दिनों हिंदुस्तान के ऑल इंडिया रेडियोज़ पे तो उतना खान साहब का उन दिनों आता नहीं था और बात तक नहीं आया. खैर वट एवर रीज़न खान साहब हैड रिजर्वेशन और वट एवर ही हैड, तो कोई बात नहीं. वो फिर हम लोग उस ट्रांजिस्टर को जब ट्यून करते थे शॉर्ट वेव के ऊपर, तो कुछ अफ़गानिस्तान, काबुल और इस किस्म के उधर वो ट्यून हो जाता था. एंड फ्रॉम देयर आई यूज़ टू लिसन उस्ताद जी सितार साउंड. वो बहुत बचपन की बात है. तो सितार तो मैं भी थोड़े बहुत स्वर बजाने शुरू किए थे, पर उनका जब मेरे को लगता था कि ये क्या चीज़ है और ये उस्ताद विलायत खान साहब का नाम लिया है, क्या मैं भी कभी ऐसा, मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे भी उनके दर्शन होंगे और आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम हिम. तो ये मेरी बचपन से इच्छा थी. मैं भी जैसे मैं उस्ताद जी के लिए बोलता हूँ कि बहुत सारी जो संगीतकारों की जो आत्माएं हैं, शायद वो इकट्ठी होके उस्ताद विलायत खान साहब के शरीर में प्रवेश किए थे. एंड इट वाज नॉट जस्ट वन सोल, बिकॉज कोई आप किसी भी उनसे सीनियर, उससे पास्ट के किसी भी संगीतकार का चर्चा कीजिए, नाम लीजिए, एंड इमीडिएटली ही विल रिप्रोड्यूस काइंड ऑफ द स्टाइल दे यूज टू सिंग. तो ये और अभी बहुत बहुत कमाल बच्चे भी हमें दिखते हैं जो 8-10 साल की उम्र में, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में जो काम करते हैं. तो ये एक जन्म का या उस एज का कमाल तो नहीं हो सकता. तो वी आर जस्ट द बॉडी आई थिंक, एंड समबडी एल्स इज़ विद इन अस, जो कि हमारे से संगीत करवाता है या हमें प्रेरित करता है उस ओर जाने के लिए. तो इस प्रकार मेरा बहुत इंट्यूशन और मुझे लाइकिंग शुरू से ही हो गई थी खान साहब के सितार से. एंड देन थोड़ा और बड़े हुए तो देन फादर यूज्ड टू टेक मी टू द म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हेल्ड इन चंडीगढ़ और इन द एडजेसेंट एरिया. तो उन दिनों खान साहब तो चंडीगढ़ में मैंने तब तो नहीं सुने थे, पर और बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी,
और ना जाने कौन-कौन, भीमसेन जोशी जी से लेके बहुत सीनियर कलाकार उन दिनों चंडीगढ़ में उनके प्रोग्राम होते थे, तो हमें वो ले जाया करते थे और हम उनको नेचुरली सुनते थे और वो हमें बताते भी थे कि देखें ये किस प्रकार का राग चल रहा है और कैसा गाना बजाना है, ये है वो। इस किस्म से एक तालीम जो थी वो जैसी होनी चाहिए, नॉट कि आजकल जैसे बच्चों की होती है, दे आर कंस्ट्रेंट टू वन वन टीचर और वन गुरु और वन रूम और वन क्लासरूम। तो ऐसा ना होकर के वो बहुत एक ओपन स्पेस हमें मिला शुरू से। फिर उसके बाद पंजाब में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन बोलते हैं। तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन सर्दियों के दिनों में होता है। लास्ट संडे इज़ द लास्ट डे, लास्ट संडे ऑफ दिसंबर इज़ द लास्ट डे ऑफ दैट फेस्टिवल। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ठंड होती है उन दिनों में नॉर्थ में। तो हमें करीब-करीब जब 9-10 साल की उम्र या 7-8 साल या 9-10 साल की उम्र से पिताजी हमें दिसंबर में वहाँ ले जाते थे। इट वाज़ टू कोल्ड, इट वाज़ मतलब सच हॉरिबल वेदर ऑलवेज़। तो वो हमें जैसे भी लेके जाना और ओवरनाइट प्रोग्राम चलते थे वो। तो वहाँ पे खान साहब के मेरे को दर्शन हुए। मेरे को वहाँ निखिल बनर्जी के दर्शन हुए, मेरे को इमरत खान साहब के दर्शन हुए, रईस खान साहब के दर्शन हुए, अब्दुल हलीम खान साहब के हलीम ज़ाफ़र खान साहब के दर्शन हुए और ऐसे ही सरोद वादक और गवैये और बड़े-बड़े कृष्ण महाराज जी, अल्लाह रखा खान साहब, ज़ाकिर जी और गुदाई महाराज और ना जाने मतलब यू नेम द आर्टिस्ट एंड ही यूज्ड टू बी देयर, सच वाज़ द ऑरा ऑफ दैट फेस्टिवल। तो उनको जब मैंने सुना तो शायद तभी से मैंने ठान लिया था कि अगर मैं शागिर्द बनूँगा तो इन्हीं का बनूँगा। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि पिताजी के बाद फिर पिताजी के गुरु भाई जिनके बड़े भाई उस्ताद विलायत खान साहब के शागिर्द हैं, मतलब ही पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक, डॉक्टर वीरेंद्र जी, उनके भाई। ही केम टू चंडीगढ़, तो फिर मेरी तालीम उनसे भी हुई। Then later on, when I just passed out my 11th, so Dr. R.D. Verma, who is disciple of Pandit Ravi Shankar ji, he came to us in Chandigarh, stayed with us. उन्होंने कहा इसको मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं उनके यहाँ भी चला गया। पर इन सब गुरुओं ने मिल करके मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम जो किया वो ये था कि they exposed all the artists of the world to me. ये नहीं बोला कि नहीं मेरा लेसन बजाओ, मेरी गत बजाओ, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को जो स्टाइल पसंद था, मैं कहता था कि मुझे ये वाला संगीत पसंद है, तो मेरे को वो ही उन्होंने जो भी उनको टूटा, जैसा भी वो बजा सकते थे या जैसा परिचय करा सकते थे, वो कराते रहते थे। तो ऐसा करते-करते फिर बचपन में, क्योंकि चंडीगढ़ वाज़ ए वेरी हैपनिंग प्लेस, बहुत लोग, बहुत आर्टिस्ट आया करते थे। शुजात खान साहब, निशात खान साहब बड़ी छोटी उम्र से ये चंडीगढ़ में आते थे। तो श्री भैनी साहब से भी मेरा आना-जाना मेरे बचपन से था। तो उन महापुरुषों की वजह से इन लोगों से भी मुलाकात होती थी, तो मैं हमेशा ज़िक्र करता था कि मेरी भी इच्छा है मैं कभी आऊँ। पर अंदर से मेरे को डर लगता था। आई वाज़ ऑलवेज़ अफ्रेड कि मेरे को लेंगे, नहीं लेंगे। ऐसे करके होता ही है बच्चों में। तो करीब-करीब सितार बजाते हुए मुझे कुछ साल हो गए, तो मैंने बैनी साहब, मैंने अर्ज़ किया उनको, सतगुरु जी को, क्योंकि ये 70s की बात है ये, कि मेरे वो बड़े भाई जो गुरु भाई वीरेंद्र जी वो जा चुके थे, उनको सतगुरु जी ने खान साहब के पास भेजा था। और ना कि सिर्फ उनको भेजा था, सतगुरु जी ने बहुत लोगों को सिखाने के लिए खान साहब के पास, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पास, कृष्ण महाराज जी के पास, और जहाँ-जहाँ भी बच्चे का टेस्ट हो या उनको जहाँ लगे कि इन गुरुओं के पास भेजना है, वो भेजते थे। तो उनकी कृपा है कि मैं खान साहब का शागिर्द बना। तब मेरे को सितार बजाते हुए करीब 14-15 साल हो गए थे। तो जैसा कि मैं धर्मवीर जी का अभी सुन रहा था उसमें इंटरव्यू, अब खान साहब तो खान साहब रहे। अब वो 1 सेकंड में वो देख लेते थे कि कौन किसमें कैसा पोटेंशियल है, नहीं है, बनने लायक है, नहीं है। तो कुछ ज़्यादा कुछ ना हुआ और मेरा स्ट्रेट वे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ट्रेनिंग शुरू हो गया। और ये मैं तो सरप्राइज़ था और मैं तो बिल्कुल हतप्रभ था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे करके मैं खान साहब से एक दिन मिल जाऊँगा। और हम घंटों खड़े रहते थे जलंधर में या और जगहों पे जहाँ खान साहब का पता लगता था
कि ही इज़ कमिंग टू परफॉर्म, कि एक उनके दर्शन हो जाएं, वो इधर से निकलेंगे। कई ग्रीन रूम के बाहर में खड़े रहते थे घंटों भर, हिम्मत तो होती नहीं थी कि उनसे जाके बात कर सके या उनके चरण छू सके, बस एक देख लेने भर की इच्छा होती थी। बाकी तो जब जब हमने प्रोग्राम सुन के, उनका कोई कॉन्सर्ट सुन के वापस आना, तो 2-2 महीने होश नहीं आती थी हमें। वो दिन रात वो दिमाग में गूंज रहती थी उन साउंड्स की, उस रागों की, और कैसे वो स्टेज पे आते थे, कैसे एड्रेस करते थे। मतलब ही वाज सच ए लाइक ए गॉड फॉर मी। मैं तो, मेरे लिए भगवान थे वो बिल्कुल। और जो भी मेरे इससे पहले के गुरु हैं, उनका इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि खान साहब ने मेरे को एक्सेप्ट किया। और बस इस प्रकार ये तो एक साल की बात है कि मैं इतने साल का था तब मैं गया। I was about I think 19 or 20 years of my age when I became disciple। पर मुझे ये लगता है कि मैं पैदा ही खान साहब का शागिर्द होने के लिए बना हुआ था, और जन्म से ही मैं उनका शागिर्द हूँ जी। क्या बात पंडित जी, मैंने हम लोग तो मोहित हो गए। उस्ताद जी का सितार, एक तो वेरी मच एनर्जाइज्ड, इतना पावर, इतना उसमें इंट्रिकेसीज, और एक एक जगह में उनका इतना इमोशंस, इतना पैशन, इतना छोटा छोटा बारीकियां कि हम लोग कभी कभार रो देते हैं, कभी कभार एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब उनका इस फिलॉसफी के साथ आपका रूबरू हुआ, तो आप अपने आप को कैसे एडजस्ट किए? उस्ताद जी का क्या क्या चीज आपको बहुत इंस्पायर करने लगा, और आप कैसे उनका जो दिग्दर्शन या मार्गदर्शन में आप आगे बढ़े? थोड़ा सा हमको बताइए प्लीज। पता नहीं, और शागिर्दों की तरह मेरे को कोई पलटों से या सरगमों से इस प्रकार खान साहब ने नहीं शुरू कराया। शायद उन्होंने देखा होगा कि मैं ऑलरेडी उस राह पे हूँ जहाँ मेरे को होना चाहिए था। सो ये पहचान करते हुए वो सीधा, मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन हम गए तो वहाँ रागदेव गंधार का प्रैक्टिस रात को 10 बजे चालू होता था। दिन भर में हम लोग जो भी कुछ कार्य घर के हों या जो भी खान साहब का आदेश हो, कि हम लोग तो एक बहुत सेवक की तरह वहाँ रहते थे। हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि खान साहब जिस कमरे में या जिस जिस जहाँ उनका कमरा था उस तरफ चले भी जाएं। वी यूज़ टू वेट ऑलवेज कि कब खान साहब के दर्शन हो जाएं, उनके घर में भी। तो हमें जो उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी, वहाँ पे उनके पुश्तैनी साज रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े सुरबहार, सितार उनके ख़ानदान के। हम तो उन्हीं को प्रणाम करते रहते थे, और कभी उसको साज को निकाल के उसका सफाई कर दिया, उसको देखते थे हाथ में पकड़ करके, और वहीं उसी कमरे में रहते थे। और उस कमरे में जब हमने रियाज़ करना, जैसे दिन में कभी, तो खान साहब नॉर्मली आते नहीं थे, बट ही यूज़ टू बी अराउंड, कि वो सुनते ज़रूर थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक आध बार या 2 बार वो आए भी मेरे वहाँ स्टे के दौरान कमरे में, पर ज़्यादा करके ये था कि वो ही वॉज अ वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वर, कि कौन शागिर्द कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, और क्या ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बाकी रियाज़ का टाइम वहाँ रात को 10 बजे शुरू हो जाता था। तो ये सब मेरी बहन ज़िला, यमन, शुजात भाई, या और जो शागिर्द उन दिनों में आए होते थे, तो वो सब लोग 10 बजे इकट्ठे हो जाते थे। उससे पहले शाम का खाना खा के पीछे लॉन्स, उनके वो बहुत बड़े गार्डन्स थे, पेड़ थे, वहाँ पे खूब खेल कूद कर कर के हम लोग 10 बजे आ जाते थे उसमें। और 10 बजे आके फिर जाने का तो वापस कोई टाइम ही नहीं होता था। और खान साहब जब उनका मन होता था बीच में, जब भी आ जाएं, वो कभी 2 बजे आ जाएं, कभी 12 बजे आ जाएं, या लेट कभी आ जाए, सारा वो कुछ पता नहीं रहता था कि कब आ जाएंगे। और तालीम सितार पकड़ के बहुत कम होती थी, क्योंकि ये एक ऐसा मैं सोचता हूँ कि माध्यम था जिससे हमें ये समझ आया कि अगर आपको गाना का समझ हो जाए तो सितार अपने आप बज जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस घराना, एंड स्पेशली द खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, जिन्होंने अपने हाथों को गला बना दिया। और क्या खूबसूरत वो उनका गाना था, एंड
वो तो एक प्रोफेशनल गवैये की तरह ही थे, प्रोफेशनली गाते भी थे वो। और वो चलो ख़ानदान का वो जो भी स्टोरी है कि उनकी अम्मा ने उनको ये ख़ानदान का वास्ता देते हुए बोला कि तू सितार बजाएगा, और ऐसे करके तो गाने से ही तालीम हुई सारी। और वही आज तक भी मैं बहुत कम सितार सुनता हूँ, मैं तो गाना सुनता हूँ। और वो ये शायद उसी का असर है कि थोड़ा बहुत मैं भी सितार बजाने योग्य हो गया खान साहब की संगत में जाके। तो बस उनका उनका क्या ज़िक्र करूँ मैं कि जैसे हर एक स्वर से उनको मोहब्बत थी, एक एक स्वर से, एक एक चीज़ से उनको मोहब्बत थी। और ये कहना कि हम तो आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि पास्ट जितने भी साल, अब 40 साल से ऊपर उनके साथ या उससे पहले जो खुद का उनको सुनने का वो मेरा टाइम रहा, मैं तो हतप्रत हो जाता था कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में उन्होंने मतलब जिस प्रकार से राग को उसका अनफोल्ड करते थे। 15 मिनट हो गए हैं, सा के ऊपर ही बैठे हैं। उसके बाद धीरे 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 करके करते करते कब 1 घंटा हो गया और अभी आलाप ही हो रहा है। और इस प्रकार इतना एलेबोरेटेड संगीत उनका। और उसके बाद जब जोड़ आलाप शुरू हुआ तो वो कमाल, जोड़ झाले शुरू हुए तो वो तूफान की तरह, और उसके बाद जो जोड़ की ताने जब शुरू हुई और उसमें गमक का काम शुरू हुआ तो हम तो मुंह खुले ही रह जाते थे। और पंडाल में क्या लोगों का उनका उनका एक्शन, उनका रिएक्शन होता था खान साहब का सितार सुनने के बाद। और उसके बाद जब उन्होंने भटियाली या पहाड़ी या भैरवी या खमाज या पीलू या कोई भी ऐसा रंग उन्होंने छेड़ना, तो हम तो देखते ही रह जाते थे कि ये आवाज़ निकलती कहाँ से है। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी लंबी मीलों में ही वो कमाल होता था, बहुत छोटी छोटी, अगर किसी स्वर पे खड़े भी हैं वो, तो वहीं जैसे वो सजीव हो जाता था, मतलब वो स्वर जिंदा हो जाते थे। कि जैसे मैं एक बार नौशाद जी का एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला खान साहब के लिए कि जब खान साहब साज हाथ में लेते हैं, सितार हाथ में लेते हैं, तो राग और रागनियाँ हाथ बांध कर खड़े हो जाती है उनके सामने कि आज खान साहब कौन सी राग या रागनी का चुनाव करेंगे और उस राग या रागनी के ऊपर मेहरबानी करेंगे कि उसको सितार के ऊपर बजाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये नौशाद जी का कहना है। और इस प्रकार मैं तो आज भी सोचता हूँ कि हम मतलब खान साहब अगर एक समुद्र की भांति हैं या एक आकाश की भांति है, तो हम तो शायद उसका एक कतरा भी नहीं ले पाए हैं अभी तक, किस चीज़ का वो। और ख़ास तौर पे ये देखें, आज हमारे पास सब कुछ है कि हम सुन के कुछ निकाल लेते हैं, खान साहब को भी सुन लेते हैं और आर्टिस्ट को भी सुन लेते हैं। पर जिस इंसान ने पहली बार वो कंसेप्ट लाया होगा, और वो भी ऐसा कि आज तक उसके बाहर कोई जा नहीं पाया है। आज उनका 92 ईयर्स का एज हो गया है। वी आर सेलिब्रेटिंग 92nd बर्थडे। मतलब कि इतने साल में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है कि कोई कलाकार पैदा हो गया जो ये कहे कि मैं इसके बाहर जा सकता हूँ। और मुझे लगता है और कई सेंचुरीज लगेंगी कुछ और करने की गुंजाइश सोचने भर को भी। आप हम लोग कभी कभी बहुत गलतफहमी में होते हैं कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। अरे उनको सुन के देखो, वो ये काम 50 साल 60 साल पहले करके कहीं और निकल गए थे। हम लोग तो बिल्कुल एक धूल मात्र हैं, एक कण मात्र हैं उनके सामने। तो इस प्रकार मेरा तो उनके प्रति ये श्रद्धा है और यही मेरा जीवन है कि मैं सारी उम्र उनको सुनता रहूं। और मैं भी अब 63 साल का हो चुका हूं, और कितने साल एज रहेगा, गाना बजाना चलेगा। बस उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत गाना बजाना होता रहे। बाकी आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है कि यू आर द टॉर्च बेयरर। इतने यंग लोग, इतनी दुनिया में इतने लोग। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ महान हस्तियाँ ऐसी जिनमें खान साहब एक हैं कि आज किसी भी घराने का, कहीं का भी कोई सितार वादक हो, इनके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। मैंने बहुत लोग सुने हैं, बेशक वो नाम लें। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, नॉट ओनली सितारिस्ट, ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इवन कभी कभी गवैये लोग भी
गवैये भी। खान साहब ने बहुत गवैये लोगों को भी तालीम दी है। कल हरभजन सिंह जी का, महेंद्र सिंह जी का जिक्र हो रहा था। ही वॉज टॉप ग्रेड ठुमरी गायक फ्रॉम पंजाब। वो खान साहब से जाके ठुमरी सीख के आते थे, जाके उनके शागिर्द बने, गंडा बंदन शागिर्द बने उनके। जो तो कहने का मतलब हमारे जो हमारे ठुमरी और गजल और इस सब का सम्राज्ञी थी हमारे बेगम अख्तर साहिबा, जी 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 उनका जी उस लेवल का आर्टिस्ट का एक दिल का ख्वाहिश थी कि हम उनका स्टाइल सीखे, जैसे खान साहब निभाते थे स्वरों को, उनका जो पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ ठुमरी, वो जी उनको उनसे सीखने का एक मन उनका हुआ। तो सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ही वॉज नॉट ए सितारिस्ट ओनली, मतलब वी कांट से दैट उस्ताद विलायत खान साहब वाज ए सितारिस्ट, जस्ट ए सितारिस्ट। वो ऐसा करके तो एक तौहीन होगी उनका नाम लेने के लिए भी। मतलब वो तो ऐसा एक युग पुरुष बोले हैं कि वॉज कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट, कि संगीत का कोई भी पक्ष हो। और जैसा कि कल भी चर्चा हो रही थी कि रियाज और साधना और सोच, और जिला बहन ने भी कल कितना बताया कि वो मतलब ही ऑल 24 आवर्स ही वाज थिंकिंग, सोते हुए जागते हुए हर वक्त उनके दिमाग में वो चल रहा होता था कुछ ना कुछ। एंड कल जिला बहन ने जिक्र किया कि दे वांटेड हिम टू हैव अ गुड स्लीप, दैट्स व्हाई उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि कुछ उनको स्टोरी सुना, ये कर वो कर। अदर ऑल टाइम ही वाज इनटू म्यूजिक। और वाकई वो ऐसे 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 पुरुष सदियों में एक बार आते हैं। हम लोग तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा कर लिया, आज कर लिया, नहीं कर लिया, कभी रियाज हो गया, कभी अच्छा हो गया, नहीं हो गया। पर ही वॉज सो फोकस्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कल मैं बहुत सुन के मेरे को अच्छा लगा, और एक रियाज का और नई दिशा मिली कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सा के ऊपर, नी से सा आगे, सा नी सा के बीच का ही एक चक्कर जो है उसका रियाज हो रहा है। खान साहब उस पर चिंतन कर रहे हैं, और 15-20 मिनट पता लगा कि वो उसी सा पे ही है बस। ये जैसे हमारे जो कंठ साधना करते हैं जो गायक लोग हैं, मुझे लगता है सितारियों को भी ज़रूरत है इस किस्म की। हम लोग सिर्फ ताने या उस पाठ या उस तरफ बहुत भागते हैं। हमें ठहराव की बहुत ज़रूरत है कि एक एक स्वर को अगर हम 5 मिनट 10 मिनट तक ठहर करके उसको देखें, तो आप देखें कि मुझे महसूस होता है कि 50-60 साल की उम्र के बाद आप में एक ऐसा चेंज आता है कि वो स्वर वो जैसे वो लाइव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं बिल्कुल। वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। वी कैनॉट सी क्लासिकल म्यूजिक, वी कैनॉट सी म्यूजिक, पर वो दिखना शुरू हो जाता है, वो स्वर दिखने शुरू हो जाते हैं। ये जो स्वर जो कहते हैं भैया इस स्वर को देखना, जैसे खान साहब ने बहुत बार स्टेज पे भी बोला भैया जरा इस किरदार को देखना, इसको देखना, उनको दिखता था और वो चाहते थे कि दूसरे लोग भी उसको देख पाएं। तो वो देखने मतलब संगीत को सुनने से लेकर के संगीत को देखने तक का जो सफ़र है, वो एक परफेक्शन आते आते कब आती है और किस में आती है, इसमें सारी ज़िंदगी क्या, मुझे लगता है कभी कभी कई जिंदगियां निकल जाती हैं। जी तो पंडित जी, आप थोड़ा हमें सितार साज में थोड़ा उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर, वो थोड़ा सुनाइए प्लीज। मैं ये तो नहीं कह सकता कि खान साहब का प्रभाव ही वो भी आया या नहीं आया, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मेरी तो एक कोशिश है एक सेवक की तरह कि जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं कर पाया वो आपके सामने है। और एक और खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ मैं। खान साहब के स्टाइल को बजाने वालों को पहचानने के लिए उनका सितार वादन सुनने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ सितार जब पकड़ के एक छेड़ दे देते हैं, बस इतना कह दिया तो पता लग गया कि ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सितार प्लेयर्स, किंतु ये छेड़, ये हाथ, ये तारों का क्रम, ये ट्यूनिंग का क्रम, और ये जोड़ा छेड़ा नहीं,
और ये छेड़ आई नहीं तो बस उस्ताद विलायत खान साहब का स्वरूप सामने आ जाता है। वो बजाना बाद की बात है। मतलब मैं तो हमेशा अपने शागिर्दों को भी बोलता हूँ कि भाई आपकी ट्यूनिंग से जैसे ही यू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आप इस घराने से हैं। इसको देखो कि वो कैसे सितार मिलाते थे और कैसे वो छेड़ते थे। इजाजत है थोड़ा जो भी आप लोग कहें। बिरताना तेरना आज रंग है रे माँ रंग है रे आज रंग है।
ये सब चीज़ें हम सुनते थे, ये सब चीज़ें सुन के पागल हो जाते थे कि कहाँ से विचार आते हैं। विद द बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सुन सुन के थोड़ा पता नहीं कितना इम्बाइब हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोग जाने या सुनने वाले जाने। तो सही में पंडित जी, जो जो एवोल्यूशन, मतलब सितार में संगीत का जो इम्प्लीमेंटेशन, साज का जो एवोल्यूशन, हमारे टेक्निक का जो डेवलपमेंट, और जी। सितार का भी जवारी का, फिर सितार का रख रखाव का, फिर सितार का पर्दे का, हर एक चीज में उस्ताद जी क्या सोच लेके आए थे। और ये जो आप पूरा का पूरा गाना गायकी जो सितार में ढाल रहे हैं, जिसमें केवल स्ट्रोक का जनरेशन एक हाथ से नहीं, दाहिना हाथ से नहीं, आपका बायां हाथ से भी बहुत सारा सूत से, कीर्तन से, स्पर्श से बहुत सारा स्ट्रोक जनरेशन हो रहा है। एक नया जो जरिया, जो हमारे और भी पंच परमेश्वर जो हमारे थे, पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी जी, उस्ताद हलीम जफर खां साहब, उस्ताद मुश्ताक अली खां साहब और उस्ताद विलायत खान साहब, ये पंच परमेश्वर, ये लोग जो सितार में जो डेवलप किए, और खास करके उस्ताद जी का जो गाने का पैटर्न्स, ये आपको कैसे लगा? मतलब ये चीज आप कैसे ढाले अपने आप पर, जो कि वो उसका ट्रेनिंग तो अलग होता है, उसका तो अलग सा अंदाज होता है। देखो, मुझे हमेशा से ये लगा। हाँ प्लीज Sharanjit bhai, please, you also said something. Yes. प्लीज शरणजीत भाई। जो भी बजाया गुरुजी ने, अक्सर ऐसा होता है कि मैं और गुरुजी का हमारा ऐसा है कि हम लोग गाने में अक्सर मशरूफ हो जाते हैं, पर कुछ सवाल जो मेरे जहन में हमेशा थे और जो मैं बजाते हुए देखता हूँ, खान साहब की जो छवि मेरे को दिखती है, उसमें जितना एफर्टलेसली अभी चीजें निकल रही हैं बजाकर,
उसमें मुझे लगता है सोच बहुत बैक स्टेज रोल ले लेती है। मतलब जहां आप इंटेलिजेंटली सोच रहे हो कि उंगली ऐसे पड़े, हाथ ऐसे चले, या इस पर्दे पे आकर इतनी मींट खींची जाए, ये सब चीजें बहुत बैक स्टेज, हम लोग इसको ट्रांसेंड कर जाते हैं। खान साहब के बजाने का मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, कि जो मैंने पहली बार उनके वीडियो सुना, मैं जब से सितार बजा रहा हूँ खान साहब के जाने के बाद से मैंने शुरू किया। तो सब लोग जानते हैं एक वीडियो उनकी जिसमें हमीर उन्होंने बजाया है रॉयल अल्बर्ट हॉल में, और उसमें उन्होंने बंदिश अचानक मोरे पिए आके जगाए वाली गाई है। वो वीडियो शुरू होती है, पहली 2 लाइन वो गाते हैं और एंगल जो है वो साइड से है उनका, और फिर सितार पे बजना शुरू होता है। एक चीज जो मैंने गौर करी और जो मैं हमेशा जब भी सुनता हूँ मुझे इससे ताज्जुब होता है कि जो एक्सप्रेशन, जो उनके मूवमेंट्स जब वो गा रहे हैं, आंखों की, हाथ की, सिर की है गाते हुए, और जैसे ही वो सितार बजाना शुरू करते हैं वही मूवमेंट सेम रहती है। उससे मैंने ये अंदाजा लगाया एक स्टूडेंट की तरह कि उन्होंने सोचा नहीं कि उन्होंने कब गाया और कब सितार बजाया। तो मैं ये भी साथ में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके साथ साथ एक अपने आप को एक मीडियम बना देना और अपनी सोच को आड़े ना आने देना, वो कितना रोल उसमें प्ले करता है, अगर उस पर भी थोड़ी आप रोशनी डालें। बहुत जरूर, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पूछा आपने और बहुत कीनली आपने ऑब्जर्व किया। खान साहब एक ऐसे संगीतकार और एक ऐसे दिव्य पुरुष में बोलूँगा। ही वॉज नॉट ओनली वन पर्सन, वो गवैये और सितारे एक ही समय में थे। कब वो गवैये हैं और कब सितारे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट। और वो 2 in 1 का जो पर्सनैलिटी था, वो ठीक है, वो टेक्निकली कुछ बताते हैं कि ऐसे हाथ रखना चाहिए, ऐसे ऐसे मीट निकालने चाहिए। मुझे लगता है ये सारे बैक स्टेज पे चले जाते हैं, बैक ड्रॉप पे चले जाते हैं। किस जगह से क्या हरकत निकल जाएगी और कब निकल जाएगी, फ्लॉलेस और सीमलेस वो काम होता है सारा कुछ। ये सारा कुछ खान साहब की देन है। ये खान साहब पंडित ने जी, जी एक वेस्टर्न म्यूजिक में कहावत है, फर्स्ट म्यूजिशियन लोगों के लिए जो लर्नर होते हैं फिर उसके बाद म्यूजिशियन होते हैं, कि फर्स्ट यू लर्न द टेक्निक, देन मास्टर द टेक्निक, देन फॉरगेट द टेक्निक, देन एंड यस देन फॉरगेट प्ले दैट। प्ले विथ योर हार्ट। तो ये हाँ हाँ उनके हाँ लिए, हाँ उस्ताद जी के लिए एकदम वो सामने दिखता है। और बिल्कुल वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, हम जब कोई पलटा अगर सीखते हैं तो वी ट्राई टू प्ले इट एंड कॉन्शियसली उसको बहुत हाँ संभाल के करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करते 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 थोड़ा उसमें चमक आने लगता है कभी कभी म्यूजिशियन लोग, फिर एक टाइम करते करते उसमें सिद्धि आता है। जो वो यस जब आ जाता है तो आपको वो सबकॉन्शियस में चला जाता है कि एग्जीक्यूशन वो टेक्स द बैक स्टेज, कि कैसे उसको किस तरीके से उसको, जैसे ड्राइविंग हम जब सीखते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है, लेकिन बाद में हम खान साहब का म्यूजिक सुनते सुनते भी ड्राइविंग कर लेते हैं। तो वो टेक्निक बैक स्टेज में आ जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर आप बताइए बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल 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 आपने सही बोला कि फर्स्ट यू लर्न द टेक्निक, प्रैक्टिस, और उसके बाद उसको भूल जाइए और फिर दिल से बजाइए। तो ये दिल से बजाना ही है, कुछ नहीं सोचना पड़ता है कहाँ हाथ है, क्या कहाँ से मीड आएगा, क्या फ्रेज आपके दिमाग में है, बड़ा आसानी से निकल जाता है। और यूँ अगर देखें कि उसके स्वर गिनने लगें और उसको अगर टेक्निकली देखने लगे हैं कि भाई इसमें ये था वो था, तो वो कभी भी नहीं, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। बट फॉर वो खान साहब के लिए तो ऐसा था जैसे वो ये कुछ भी नहीं है जैसे कि। और मुझे लगता है कि उसके पीछे भी जो मूल मंत्र, एक तो देखें ईश्वर की जो कृपा और जो अनुकंपा उनके ऊपर रही, वो उसको तो कोई छीन नहीं सकता। हम लोग रियाज कर सकते हैं, हम लोग 24 घंटे रियाज कर सकते हैं, 20 घंटे रियाज कर सकते हैं, पर फिर भी वैसा असर आएगा नहीं आएगा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में है। प्रैक्टिस से हम बहुत सारी चीज़ें साधना कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो असर, वो जब तक ईश्वर का वो वरदान ना हो या ईश्वर जब तक ना चाहे, और वो ईश्वर की बहुत बड़ी देन, अल्लाह की देन खान साहब को थी। तो अब जैसे कुछ भी हम बजाते हैं, इसमें होता है। इसमें अगर स्वर ढूंढने लगे तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा आराम से, तानों में कोई जोर नहीं लगाना और कुछ ऐसा पोस्चर नहीं करना
कि बहुत पता नहीं जान निकल गई ये करते हुए। ये धीरे धीरे करके हर आर्टिस्ट जो 30 40 50 साल रियाज कर लेता है उसमें आ जाता है। शुरू में कुछ शायद कुछ कलाकारों की ये भी होती है कि वो द पब्लिक शुड नो कि मेरा कितनी मेहनत लग रही है, कितनी जान निकल रही है, ये उंगली कट भी सकती है, इसमें खून भी निकल सकता है, ये हो सकता है। बहुत सारे गॉसिप्स जो हैं वो चलते रहते हैं, पर इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप अपना सीरियसली काम कीजिए, सुनने वाले को पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। और जो खास बात है कि टोन्स जो हैं वो उनसे परिचय खान साहब ने जो दुनिया को कराया, शायद उससे पहले नहीं था। हम सब लोग जानते हैं कि सितार कोई ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले भी ऐसा बजता था। अगर एक एस्टेब्लिश कोई लाइन एज फैमिली का है तो वो खान साहब का है। उस्ताद जी हैं, उनके फादर हैं, उनके चचा वहीद खान साहब हैं, इमदाद खान साहब हैं, उसके बाद साहबदाद खान है। आप सब लोगों ने उनको सुना है, उनके जितने भी वो ऑन रिकॉर्ड जो अवेलेबल हैं वो सब सुना है। तो कहने का मतलब कि विलायत खान साहब, इनायत खान साहब जैसे, हालांकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही विल ऑलवेज से, और कहा भी उन्होंने कि क्योंकि मैं इनायत खान साहब जैसा नहीं हो सकता था, दैट्स व्हाई आई हैव टू चेंज माय स्टाइल ऑफ प्लेइंग, ये उन्होंने बोला है। आप लोगों ने सुना है। पर आप देखें कि सितार को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और क्या साउंड्स इसमें जो कभी जिस आदमी ने पहली बार सोची होंगी, उस आज तो हम बड़े आराम से कह देते हैं ये देखो ये इसको स्वर को लंबा करना हो तो ऐसे कर लेते हैं, और इसके फॉलो अप टोन्स और फॉलो अप साउंड्स ऐसे हैं। ये सब ये देना अब ये सब चीजें किसने पहली बार करी? मेरे ज्ञान में तो ऐसा कोई सितारिया इससे पहले नहीं है जिसने ये करी हो। हम लोग तो एक को जिसको कहते हैं ना, हमारे ऊपर तो एक ब्लेसिंग है कि हमें ये एक पका पकाया हुआ एक तैयार प्लेटफॉर्म हमें मिला कि जाओ उसको सुनो और उसमें रहो। कितना 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 उन्होंने सोचा होगा दिन रात, और ओवर द टाइम उसको जियो उसको जी, उसको जियो, और ये हमारे लिए अभी ऑक्सीजन बन गया हम उसको लोगों के जिया। लिए। और ये देखिए, आप सब जानते हैं कि खान साहब का भी सितार हर 5-10 साल में वो चेंज होता रहा। उसका टोनल क्वालिटी, उसका बजा जो अब शागिर्द लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद करते रहते हैं कि हाँ ये पैटर्न ऐसा बजा ले, वो उन्होंने कब के बजा के छोड़ दिए, वो आगे निकल गए। इट इज़ फॉर अस टू सी कि हाँ कुछ लोग उसी में अटके रह जाते हैं। मैंने खान साहब को कभी ये कोशिश नहीं किया इस किस्म से समझने का कि उन्होंने ये तिहाइयाँ कैसे ली, उन्होंने ये लयकारियाँ कैसे करी, मुझे उनकी आत्मा से प्यार था। वाह वाह वाह। मैंने उनका वो एस्पेक्ट देखा कि ये सितार कैसे बजता है और अंदर से सितार कैसे बाहर आता है। इट्स नॉट जस्ट हैंड्स जो बज रहे हैं, जो सितार को बजाए, ये हाथ नहीं है। क्योंकि अब आप मेरे से अगर बहुत पूछें, कि मेरा अपना खुद का विश्वास है कि आप बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारा वो सब कुछ, आप 6 महीने का अगर टाइम दें तो आप सैकड़ों बंदिशें याद कर सकते हैं, पर उसमें असर है या नहीं है ये गारंटी नहीं है। तो 2 किस्म का काम है कि आप असर लाना चाहते हैं अपने संगीत में, या सिर्फ आप याद या रटा रटाया या पैटर्न या उस किस्म की चीज़ें बजा के। और दूसरी बात, हम खान साहब को फॉलो या उनका कॉपी करने वाले, हमारी तो औकात नहीं है भाई। हम अगर वैसा करेंगे तो मेरे को कौन सुनेगा, वो तो खान साहब को सुनेंगे। जो ओरिजिनल है वो तो वो ओरिजिनल रहेगा, हम लोग तो एक कॉपी मात्र करते हैं, और कॉपी तो कॉपी रहेगी भैया। तो इसलिए एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी जिसके लिए इसी घर का एग्जाम्पल देते हुए आप कह सकते हैं कि उस्ताद साहबदाद खान के बाद जब इमदाद खान साहब ने बजाया, इनायत खान साहब ने बजाया, वहीद खान साहब ने बजाया, उस्ताद विलायत खान साहब ने बजाया, अब जो शुजात बजाते हैं या आप लोग जो बजाते हो सारा कुछ, उसमें आपका अपना रंग भी तो कुछ आया, और ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है धीरे धीरे करके कि आप चाहे किसी गवैये का, किसी सारंगी वादक का, किसी फ्लूटिस्ट का, किसी गिटारिस्ट का,
किसी और सजिंदे का, किसी और उसका संगीत लेके जब आपके हाथ में साज आएगा, वो आपके रंग से ही बजेगा। आप पंडित रविशंकर की कोई ऐसी गत उठा लीजिए, या किसी ऐसे जो तंत्रकारी बाज की गतें बजाती है, जब आप बजाएंगे उसको, तो आपके रंग में ही वो गत बजेगी, वो चेंज हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपका वो बन चुका है, जिसके लिए आप लोगों ने इतने इतने साल मेहनत करी है, और ये एक आर्टिस्ट में आना भी चाहिए। अदरवाइज संगीत रुक जाता है बिल्कुल। वाई देर आर सो मैनी फ्रेगरेंसेज, देर आर सो मैनी आर्टिस्ट। नहीं तो एक ही लोग को फॉलो करते हुए लोग चलते थे। देर आर डिफरेंट घरानाज एंड ब्यूटिफुली दे हैव बीन डूइंग। इतना रियाज, इतनी रचनाएं, इतनी सोच और इतना कुछ इनोवेशन जो वो कर रहे थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर म्यूजिक। सारे गामा तो स्वर तो वही हैं, उनके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, पर उसी सा को आप कैसे लगाते हैं, मैं कैसे लगाता हूँ, तीसरा आदमी कैसे लगाता है, चौथा आदमी कैसे लगाता है, उस राग को आप किस नज़र से देखते हैं, आपकी एस्थेटिक्स क्या है। कल एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत जिला जी ने बात करी, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको देखना कैसे है, हाँ? किसी भी चीज़ को, जैसे अब हमें तो नहीं याद कि इससे पहले इस किस्म का आलापचारी किसी और ने किया था। अब इस जगह खान साहब आधा घंटा बिता सकते हैं, एक एक स्वर को हर बार उसका कभी स्ट्रोक का फोर्स चेंज करके, कभी स्वर का किसी पे रंग करके, ऐसा ऐसा उनका ऐसा मिजाज, क्या ऐसा दिमाग विरला ही होता है किसी का कि जो वो कर सकते थे। अब ये हरकतें किसने सिखाई हमें? अब कितनी बार कह सकते हैं आप? इसमें गुरुजी आप अक्सर कहते हैं कि जैसे खान साहब का जो आलाप होता है वो एक पॉइंट पे आकर इंटेंस होना शुरू हो जाता है, एक ही सुर पे आकर, और फिर वो उसका डायनामिक घटाकर फिर वो रिलीज कर देते हैं उस इंटेंसिटी। वाह 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 वाह, इट्स वेरी नाइस लिसनिंग यू शरणजीत, यू हैव बिकम सो मैच्योर। मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आप कितना उसमें रिसर्च में जा करके खान साहब के हर वादन के हर टेक्निक को कितना माइन्यूटली आप देख पा रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अब जैसे अब किसी स्वर को लेके छोड़ देना, उसकी आंच कितनी लंबी है। ये आवाज चल रही है, पता नहीं उसमें इंटरनेट के माध्यम से आपको सुन रही है? सुनाई दे रहा है, बिल्कुल साफ, बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है। इतना लंबा आवाज आता है। अब इसमें सिर्फ पा नहीं बोल रहा है, इसमें सारा सितार और पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है एक तरीके से। तो ये साउंड्स निकालने की एक करते करते आती है, या जिनको आशीर्वाद होता है ईश्वर का, वो आती है। क्या आराम से एक जगह दे रहा कितना आराम से, जैसे कि एक आपको कितना शांति मिल गई है।
और एक और खास बात मैंने देखी, ज़रूरी नहीं है जो राग में स्वर लगते हैं वहाँ से मीट जाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा नोट किया होगा कि जो जिस स्वर पे हम वापिस आते हैं उससे थोड़ा हमें पीछे आना पड़ता है, उसका एकदम। असर बनाने के लिए उससे थोड़ा पीछे आना पड़ता है। तो अगर आप उस स्वर से मीट लेते हैं तो उससे पीछे नहीं जा सकते। क्या बात। अब ये जो कहना था ये मैं शुद्ध मध्यम पे था तो आया, मीट तो मध्यम तीव्र मध्यम की थी सारी। एक फोर्स ही रहता है फिंगर का, उंगलियों का एक नजरिया रहती है कि कहाँ से करे, तो हाँ एक मतलब फोर साइट की हम बाद में क्या करेंगे उसको पहले से एक उसका अंदाजा पहले से करके फिर वहां से खींचना, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस विदाउट थिंकिंग एब्सोल्युटली। हाँ क्या बात। अब ये सारी चीजें हमें कितनी काम आती हैं। कर रहा था गमे जहां का हिस्सा, आज तुम याद बेसार गए। आज स्वर ढूंढते रहेंगे तो कहाँ बचेंगी ये चीजें। अब देखो सपोर्ट में अब ये तारें जो खान साहब ने ये हारमोनी के लिए लगाई हैं, ये ऐसे ही नहीं लगा दी हैं, ये कितना पंडित जी, साउंड जी। एक उनके उस्ताद जी के लिए कोई कहा था कि आपने हम तेल के डिब्बे में उंगली लगाते हैं या उसमें हाँ। हनी रखते हैं, तो आज आपका सुन के वही लग रहा है कि तेल के डिब्बा है या हनी का डिब्बा है। ये आपका नवाजिश है, शुक्रिया आपका। छाप तिलक सब नीले मोसे नैना, और रे बसे नैना मिला के। क्या क्या खूबसूरत बजाया खान साहब ने, कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब वो जो एक ओरिजिनल चीज चली आ रही है वो जब इनका सुन लेते वो उसको सुनने का मन ही नहीं करता। कितना एस्थेटिकली मतलब ही वाज ए मैच्योर एंड डेवलप्ड। देखो जी मतलब हर बार आप कुछ एक्सपेक्टेशन तैयार कर रहे हैं हमारे मन में, और उसके बाद हर बार उसका बियॉन्ड चले जा रहे हैं कि हम लोग विवश हो जा रहा है कि क्या बात बोलेंगे। जी शुक्रिया। क्या उस्ताद जी का, क्या मतलब उस्ताद ये देखे शास्त्रीय संगीत तो रागदारी और ये सब तो किया, हाँ। पर उन्होंने कहाँ से कोई क्या चीज उठा के उसको क्या रंग दे दिया है। ये इतने कमाल की बात है, और लोग तरसते हैं कि एक अंग उनका वो सुनने को मिल जाए। इज सच ए इनोवेटर।
ये आप लोगों ने सुना होगा एकदम ताना ना मारो। या ताना न मारो मोहती लगे रागा। अब ये बेरदा कितना कितना करुणा है इसमें। अब एक एक स्वर को जैसे वो कैसे बारीकी से वो देखते थे। अब इसमें ये स्ट्रोक नहीं जा रहे हैं, ये हैवी स्ट्रोक नहीं जा रहे हैं। जहाँ मोहब्बत की और डेलिकेसी की बात हो वहाँ उनका हाथ और कैसे आप लोग देखते हैं कि ये मूव करता करता कहाँ तक चला जाता है और सारा कुछ ये सब चीज़ें किसने सोची पहली बार? पंडित जी मैंने इसमें तो दो नहीं बात दो बात मुझे आपका जो अभी एक्सप्लेनेशन आप जैसे बजा रहे हैं, बिरजू महाराज जी के एक इंटरव्यू मैंने सुना था, वो उस्ताद जी के बारे में कह रहे थे कि दो चीज उन्होंने कहा, उनका भी एक देखने का अलग तरीका है उनके एंगल से, कि वो कह रहे हैं कि उस्ताद जी का फिंगर्स यूज्ड टू डांस ऑन द फ्रेट्स। जैसे डांस में जितना डेलिकेसी है और हाँ। जितना मुद्राएं हैं और बारीकियां हैं, उनके फिंगर के मूवमेंट्स उतनी ही बारीकियां से वो मूव करते थे और डांस करते थे। ये एक बात था उनका। दूसरा कि एक स्वर दूसरे स्वर के साथ बातचीत करते थे, एक मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा वहां पे है, एंड दे आर कनेक्टेड एंड दे आर रिलेटेड एंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन सुन के मुझे वो दो बात अभी याद आ गई। सो थैंक यू फॉर दैट। सो नाइस ऑफ यू। वाकई वो एफर्टलेस हो जाता है बिल्कुल, और कोई जोर नाम की चीज, जैसे ये तैर रही हैं उंगलियां और वो इम्पैक्ट आ रहा है सारा कुछ, कोई जोर नहीं कोई नहीं। पंडित जी ये तान के तोड़ने के बारे में थोड़ा बताइए। जो तान जैसे जनरली जो बजता है, कोई सपाट बजाता है, कोई ऐसे ही छूट बजाता है, लेकिन ये जो तान को जो तोड़ रहे हैं ना बीच बीच में, जैसे बल दे करके या पॉज दे करके, ये एक खास बात है उस्ताद जी की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए एक तो यू शुड डेवलप सच टेक्निक। देखिए एक उंगली से आप तान जाएंगे तो तान कभी भी क्लियर नहीं होगी, वो फुर 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 होता रहता है। तो यू शुड डेवलप ए टेक्निक कि उसमें कैसे वो चल रहे हैं। अब आपको पूरे स्वर सुनाई दिए, निसा का मतलब निसा। तो एक तो जो हमारे छंद हैं सब लोग जानते हैं, दारा दारा में है, और जैसे स्वर बने वैसा छंद आ जाना है। ग रे सा नि सा ग म प ग म रे ग रे सा नि रे दा दारा दारा दा। दारा 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 दा दारा दारा दा दारा 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 दारा। क्या बात। अब इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, ये सब चीज़ें बजाने के लिए हम लोग माने या ना माने, किंतु मेरा फर्म बिलीव है कि खान साहब के सितार को बजाने के लिए और ऐड ऑन भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहंदी हसन खान साहब को, गुलाम अली को, हुसैन बख्शी को, परवेज़ मेहंदी जी को, बरकत अली खान साहब को, या जितने शास्त्रीय संगीतकार जो हमारे जो ठुमरी कायन है ये सब करते थे, बेगम अख्तर जी को, इवन आज के गज़ल गायकों को, आज के फोक सिंगर्स को, सबको एक बार सुनते हैं और इनका बहुत प्रभाव पड़ता है बिल्कुल। और ये सच बात है कि फिल्म म्यूज़िक हो और ये जो हमारा जो गज़ल गायकी है, इसके जो कलाकार हैं ये राग का निचोड़ लेते हैं, वो ऐसा सुंदर जगह उसमें से तलाश करते हैं, क्योंकि उनको एक अभी वो अनफोल्ड करने का गुंजाइश नहीं है उनको किसी राग को।
कि अभी साथ में बैठे हैं 15 मिनट, कोई बात नहीं, इसके बाद धीरे धीरे चलते हैं, मंदिर का विस्तार करते हैं, फिर मध्य में आते हैं, फिर मध्य और मंदिर का करते हैं, फिर तार में आते हैं और फिर तीनों का मिला के करते हैं। फिर जो उनके पास तो ये है कि वो बैठते ही हमें उनकी चीज़ों को सुन के लेना है, किंतु यूज़ कहाँ करना है, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। एंड आपको पंडित जी, और एक बात मेरे पिताजी कहते हैं कि आप तो खान साहब को सुन रहे हो, उस्ताद जी को सुन रहे हो, सुनना चाहिए, लेकिन किन किन को सुन के खान साहब बने उनको भी Yes. सुनो। इनायत खान साहब, फयाज खान साहब, क्लासिकल एस्पेक्ट में अब्दुल करीम खान साहब, बहरे वाहिद खान साहब, रजब अली खान साहब, जरूर। ओमकार नाथ ठाकुर, जो भी हमारे बड़े बड़े जिनको उनका मतलब इंस्पिरेशन थे। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे देखें पिताजी हमसे कहते हैं। जी। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे ज़माने में हैं, या मुझे लगे भीमसेन जोशी जी का भी उस दिन मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, वो भी उन्होंने कहा कि जब कोई गायक या वादक ऐसे ज़माने में होता है कि उस समय बहुत और गायक वादक एक से एक अच्छे काम कर रहे होते हैं, उनका प्रभाव उनके गाने में या वादन में आना ही चाहिए, और आता भी है। आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम बहुत से मैस्ट्रोस को, बहुत से ऐसे उस्तादों को, पंडित मैस्ट्रोस को हम सुन सकते हैं, और उनका प्रभाव अगर आज के ज़माने में हमारे ऊपर ना आया तो फिर हमने तो ये जीवन को व्यर्थ किया। और ये तो सिर्फ उन कलाकारों के बारे में, और मैं तो इससे भी ऊपर जाके कहता हूँ, अब राग बजाते बजाते पता नहीं होता कभी कभी कब किस गज़ल का कौन सा फ्रेज आके बैठ जाएगा वहाँ पे, किस ठुमरी का कौन सा फ्रेज आके वहाँ बैठ जाएगा। वो वैसा नहीं बजेगा जैसा कि आपको ये लगेगा कि ये गज़ल चल रही है। हाँ, मान लो एक जैसे सा गा पा मा गा पा गा सा रे पा गा सा नी गा धा सा गा रे नी धा मा सा रे गा मा धा नी रे नी धा मा रे पा गा रे नी धा रे नी रे पा मा धा गा रे नी पा सा नी मा रे पा गा रे नी धा रे सा। ये इससे बहुत सारी गज़लें रिलेट करते हैं। अब जैसे हम लोग झालर में गुलाम अली की गज़लों में आमतौर पे आता है, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। और ये सच बात है कि वो कभी कभी क्या अक्सर वो ऐसी, उनका भी अपना क्षेत्र में नाम है, वो ऐसे फ्रेजेस बजा जाते हैं विच आर सो क्लोज टू योर हार्ट, जो कि इतना असर छोड़ते हैं, उनको भी लेना बनता है बिल्कुल। अब इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे राग में, पर कभी जब वहाँ पे होंगे तो वो कब आके वो फ्रेज बैठ जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, और सुनने वाले कहेंगे यार ये कैसे आइडियाज़ ना आते हैं इनके पास। वो आइडियाज़ आने के लिए पहले आपको यू शुड हैव वेरी वेरी वास्ट एक्सपोजर, आपको सुनना आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टेज पे आके गाना बजाना करने से ज़्यादा आपको सुनना आना चाहिए, और शुरू से ही सुनना आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले कानसन बनो, उसके बाद तानसेन बनो, ऐसा कहा जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा जी, तो पंडित जी, हमारे लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा, आपका क्या हम लोग के लिए टिप्स होगा, या ऐसे तो है हम लोग जब जो भी आपसे सुने बहुत माने हम लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन अभी का जो ज़माना है एक इतना चैलेंजिंग ज़माना है कि हम लोग को बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ता है, और कंसंट्रेट करने का जो तरीका है उसमें हम लोग का बहुत सारा चैलेंजेस आता है। तो पंडित जी, ऐसा हम लोग का जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वो तो आप है ही है, तो आपका क्या मार्गदर्शन होगा कि अभी का जनरेशन को कैसे संगीत में ये चीज़ को हासिल करना है, कैसे रियाज़ करना है? ये आपका बहुत बड़प्पन है असीम जी। मैं तो अपने सबसे छोटे शागिर्द को भी ये बोलता हूँ कि मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। मुझे कुछ ये अभ्यास और कुछ संगीत का काम करते हुए कुछ समझो कि 55-60 साल हो गए हैं।
आपको अभी 10 साल हुए हैं, आप भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा मैं हूँ या और बड़े बड़े उस्ताद हैं। तो इसमें पर्पज़ एक है कि करते रहना है उसको। और दूसरी बात यह है कि किसी एक उम्र में आके हम लोग तो खैर आई एम टू स्मॉल ए पर्सन कि मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि कुछ भी मैं कह सकता हूँ। ये आपकी मेहरबानी कि आप लोग मेरे को इतना इज्जत देते हैं। मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, आई एम जस्ट वन ऑफ यू। और मैं उन सब की इज्जत करता हूँ जो संगीत की पूजा करते हैं, संगीत का काम करते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं स्वरों की साधना करते हैं जिनकी हमने की है। सो इन माय ओपिनियन देयर इज नो डिफरेंस कि वो ठीक है, मैं थोड़ा सीनियर हो गया और कुछ थोड़े वो जूनियर हैं तो वो भी कल को सीनियर हो जाएंगे। कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हम बातें करते हैं आज कि एफर्टलेस, सीमलेस और ऐसा आइडिया आए, वैसा आए, ये सब कुछ आए, इसके लिए रास्ता वही है। रास्ता बिल्कुल वही है जो आप लोग करके निकले हैं, जो आप लोग करवाते हैं और हम लोग भी करके निकले हैं। ये उनको होना चाहिए कि देयर शुड बी नो हरी। हम लोग शुरू में जब हमें बचपन में कहते थे ना कि यार तू भाग दौड़ बहुत करता है, इतनी जल्दी क्या है तेरे को ये सब चीज़ें दिखाने की, कि जो 2 घंटे का काम होना चाहिए वो तुम आधे घंटे में कर देते हो। वाई दे यूज टू आस्क मी। और मेरे को ये समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था कि यार ऐसा पता नहीं जैसे हमने दुनिया फतेह कर देनी है। सो भी थोड़ा शांति रखें, आराम आराम से सब चीज़ें। यस, रियाज के दौरान जब तानों का रियाज है वो ऐसा हो कि बस वो मुंह खुला रह जाए। जब उसमें इमोशंस और जब अलापचारी आए वो ऐसा हो कि बस हो। और उसके बाद में जाके इन सब चीज़ों का निचोड़ बन के एक ऐसा फ्रेग्रेंस और ऐसा एक गुलदस्ता बनता है कि कब कितना बजाना है और कितना ज़ोर से बजाना है और कितना नहीं। ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कितना नहीं बजाना है और क्या नहीं बजाना है। सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं बजाना है कि देखो मेरे को ये आता है, मेरे को होता है। तब ये उस्ताद लोगों का हर प्रोग्राम अलग क्यों होता था? वो एक ही प्रोग्राम में सब कुछ दिखा देते अदरवाइज। अब कल धर्मवीर जी ने चर्चा की थी, शायद उन्होंने बात की होगी कि वो खान साहब ने 3 दिन वो 3 कॉन्सर्ट में मालकॉन्स बजाया, मैं सुन नहीं पाया। और दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। यानी थोड़ा बचा के रखें भाई, थोड़ा एक ये पहला और आखिरी मौका नहीं है मेरे पास कुछ भी कि मैं ऐसा कर दूं कि बस जैसे मैंने कोई किला या दुनिया फतेह करनी है। मुझे संगीत से उन स्वरों से प्यार करना है, हर एक स्वर को देखना है। आज मेरा आलाप में मन ज़्यादा रम गया था तो इसलिए मैंने तानों का काम थोड़ा कम कर दिया। कल मुझे झालों में मेरा ज़्यादा रुझान बन गया था, मैंने और चीज़ें कम कर दी। और ये आप सब जानते हैं कि आजकल तो टाइम कंस्ट्रेन है। वो कहते हैं जी 50 मिनट बजाना है, 40 मिनट बजाना है। तो यू डेवलप इन काइंड कि आप सुरीले तो हैं ही, आप तैयार भी हैं, आपके पास बहुत कुछ दिखाने के लिए है। बट बी पेशेंट, उतना दिखाएं कि आगे सुनने की इच्छा श्रोताओं में बनी रहे, ना कि वो कहें कि हमने सब कुछ सुन लिया, अब क्या सुनना बाकी रह गया। और जब भी अपने श्रोताओं से, ऑडियंस से मिले, वैसे तो ये कलाकार का, अच्छे कलाकारों का, और जो तालीम लेते हैं, जो रियाज करते हैं, ये उनमें खासियत मैंने सब में देखी है, आप सब में भी है। एवरी डे इज़ नॉट द सेम, एवरी डे इज़ नॉट संडे। आज आपका मिजाज कैसा है, साज कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, और आपकी मन स्थिति कैसी है, वही राग होता है। मुझे तो समझ नहीं आया कि मैंने करीब 57-58 साल पहले यमन सीखना शुरू किया था। तो वो साल दर साल चेंज होता गया और कैसा राग है ये कि दुनिया खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, कलाकार खत्म हो गए, राग चल रहे हैं। राग निरंतर उसमें तरक्की कर रहे हैं, नए नए उसमें दिमाग, सोच। और आप देखें, ये कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आप जैसे यंग लोग कर रहे हैं कि वो स्कोप ख़त्म हो गया। कुछ स्कोप ख़त्म नहीं हुआ। ये सोच ऐसी चीज़ है, ये भगवान ने ये हमारा दिमाग ऐसा बनाया है कि उन कलाकारों से, उन उस्तादों से प्रेरणा लेते हुए, उनका अभ्यास करते हुए, आप देखेंगे अपने आप से ही आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। अपने आप से ही आपको अंदर से लगेगा कि नहीं, आई एम बेटर देन यस्टरडे। और यही एक गोल होना चाहिए हर कलाकार का कि ईश्वर से डर के कि मैं जो कल था उससे आज बेहतर नहीं हुआ तो मेरी कुछ कमी है, उसको मैं देखूं। एंड यू शुड बी फर्स्ट, यू शुड बी द जज टू हियर यू। आपके कान ऐसे होने चाहिए कि आपको बताएं। पहले खुद को आनंद आएगा तभी दुनिया को आनंद देंगे।
और कभी-कभी हम इतना रियाज़ करते हैं यार ना, जब 4 लोग बैठे होते हैं तब कोई चीज़ बजाने की इच्छा होती है। ऐसा ना करें, खुद आनंद लीजिए, खुद उसमें रम के बजाइए। अकेले भी हैं तो अकेले नहीं हैं आप, आपके साथ एक स्वरों का संसार है, एक दुनिया है, आप उसमें खो जाएँ बिल्कुल। ये देखेंगे कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं, दुनिया आपको देखेगी अपने आप। तो मैं तो ऐसा कुछ विचार रखता हूँ और ऐसा ही मैं काम करता हूँ। शुक्रिया जी। Beautiful. I think your mic. Okay, so Ranjit bhai, if you want to ask anything to Panditji so that we get enlightened, because you have regular experience of learning from him, but something which we, you think that we will get more benefit at any particular point or aspect or angle. On definitely, we are discussing on Ustadji now today and everything related to Ustadji. Yes. So I think for the people who are fan of Ustad Ji, and because Pandit Ji has been learning, and now even he has mentioned several times that अभी भी recording सुनकर और interviews देखकर he's understanding his personality and music. तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लाइनों में विलायत खान साहब की जो philosophy, जो ideology, जो pursuit थी, वो म्यूजिक को वो क्या थी कि लोग उससे इंस्पायर हों। उनका आपने ये भी कहा कि उनका स्टाइल भी चेंज होता रहा, वो अपने आप को ट्रांसलेट कर इवॉल्व होते रहे। कहाँ पहुँचने की उनकी चाहत और वो क्या करना चाहते थे संगीत, वो आप अगर बता दें। क्योंकि मैंने महसूस किया कि 60s ऑनवर्ड जब ये अब लास्ट तक जो बजाते रहे हैं, मुझे कुछ मौका मिला उनके साथ कुछ कार्यक्रमों में साथ रहने का। और ग्रीन रूम तो एक अलग चीज़ है, या जब जहाँ ठहरे होते थे तो कि हरविंदर सितार निकालना ज़रा, और वो उस दिन ज़्यादा बातचीत तो करते नहीं थे, पर कुछ-कुछ सोच चलती रहती थी उनको कि वो दिन में, जैसे चंडीगढ़ में वो 2-3 दिन रहे। दिल्ली में एक रिकॉर्डिंग में भी मैं उनके साथ था जिसमें उन्होंने बिहागड़ा और साबिर भाई के साथ, साबिर खान साहब के साथ उनका वो रिकॉर्ड था। सुजात और मैं सब इकट्ठे थे वहाँ पे उस रिकॉर्डिंग सेशन में। वो बड़ा करीब से देखने का मौका मिला उनको कि वही राग है, वही सब कुछ है, पर उसमें कैसे वो अपने आप को हर प्रतिदिन वो उसमें डेवलप करते रहते थे, नई-नई चीज़ें उसमें आती जाती थी। और उसी राग के स्वरों को जो हमने कल सुना था आज अलग हैं, आने वाले दिन में अलग सुनेंगे। और उनका एक्सप्रेशंस और उनका मूड, मतलब इट वाज़ सच ए इंस्पिरेशन फॉर अस कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं बिल्कुल। हमें तो पता है कि ये गत बजा देनी है, ये इसमें ये फ्रेजेस बजा देने हैं, ऐसी गमक बजा देनी है, ऐसे ताने बजा देने हैं। ये सब तो रागदारी है ही नहीं बिल्कुल। ये राग में तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। राग तो एक समझे कि आप ऐसा सोचें कि यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, कि जब आप शुरू होते हैं तो यू आर जस्ट ब्लैंक, और धीरे-धीरे करके आप उसमें कैसा धीरे-धीरे, जैसे एक चित्रकार के सामने एक ब्लैंक शीट होती है और उसमें फिर वो कभी ये रंग भरता है, कभी वो करता है। ये खान साहब चित्रकार थे एक बहुत बड़े। ये कुदरत ने ऐसा बड़ा चित्रकार बनाया कि वो स्वरों के माध्यम से आपको दूसरी दुनिया में ले जाने की ताकत रखते थे। और हम लोग बहुत रोए हैं उनका सुन के, बहुत इमोशनल भी हुए हैं, बहुत अपने आप को कोसा भी है हमने कि हमें कब आएगा ऐसा बजाना, हमें कब आएगा ऐसा बजाना। और यही एक मुझे लगता है कि प्रोग्रेस की निशानी भी थी। और किसी का वादन सुन के, किसी का गायन सुन कर के आप कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों तक ऐसे इंस्पायर रहें कि आप में वैसा काम करने की इच्छा जागृत हो जाए, ये कम बात नहीं है। ये उन लोगों का इतना बड़ा देन है कि उन लोगों की बजाई हुई चीज़ें, उन लोगों का साथ, उन लोगों का ज़िंदगी के प्रति रवैया, तौर तरीका, जो भी कुछ हमें सीखने को, रहने को उधर मिला, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हम लोगों के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि खान साहब दोबारा कोई शरीर का उसमें प्रवेश करें और इस दुनिया में दोबारा आएँ, ताकि हम उस दूसरे शरीर के माध्यम से उनको वैसा देख सकें। और हो सकता है कोई ऑलरेडी आ भी गया हो, आप लोगों में ही कोई बैठा हो, उस्ताद विलायत खान साहब, जो कल को ऐसा काम करे कि हमें लगे कि वाह, ये अवतारना हो गई है इस धरती पे। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि आत्माएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं,
ये चोला बदलता रहता है। तो मुझे लगता है कि वो खान साहब भी कभी ना कभी आपके माध्यम से या आप लोगों के या किसी कलाकार के माध्यम से हमें ज़रूर दिखाई देंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। एनी टॉप 3 एनेक्डोट्स और टॉप 2 एनेक्डोट्स जो इंसिडेंट हुआ, आप तो ओवरऑल हमें बताया, कोई इंसिडेंट उस्ताद जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हो और हमें हमारे लिए थोड़ा सबक हो, वो ऐसे कुछ इमीडिएटली इफ यू कैन रिकॉल समथिंग मे बी। मेरा तो एक कल भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था और फिर कर देता हूँ कि मेरा जो शागिर्दी बनने का सबसे पहला इंसिडेंट था वही बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि उन दिनों में हम डरते थे, वो टेलीफोन एक्सचेंज में जाके फ़ोन करना पड़ता था उनको उनको वो ट्रंक कॉल लगाने के लिए वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। फिर कभी कभी घूस भी देते थे कि भैया मेरा ट्रंक कॉल जल्दी लगा दो। तो जब शागिर्दी का दिन हमारा आया तो कम्युनिकेशन वाज टू लो, जैसे कि अब अब बगल के घर में क्या है, बगल वाले कमरे में भी जाना हो तो फिर फ़ोन करके पूछ लेते कि भाई घर पे हो, या अपने बेटे से भी मिलना हो तो पूछ लेते हैं कि भाई हो तो मैं आ जाऊँ क्या। उन दिनों में तो क्या था, कुछ भी नहीं था। 60s में या 70s में क्या था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग शागिर्द बनने के लिए पिताजी और मैं एक मैसेज मेरे वो बड़े गुरु भाई ने बोला कि खान साहब से बात होगी, आप चले जाइएगा उस दिन। तो वो सारा जो कुछ भी हमारी हैसियत के अनुसार थोड़ा बहुत जो कुछ भी ले करके चंडीगढ़ से बस पकड़ी, सहारनपुर गए, देहरादून गए, और जब घर पहुंचे तो पता चला खान साहब तो है ही नहीं घर पे। और उल्टे पैर वापस आके देहरादून अपना सहारनपुर आए, सहारनपुर से फिर बस पकड़ी और अर्ली मॉर्निंग फिर पहुंचे चंडीगढ़। तो क्या करते उन मिठाइयों का और उन फलों का, जितने दिन हो सकता था खुद खाई, फिर बाकी मोहल्ले में बांटी हमने, और खान साहब को खूब याद किया। और खूब याद किया। उसके बाद दोबारा मौका पड़ा, फिर उसके बाद उनके उससे शागिर्दी हुई। और चंडीगढ़ में आपको बताऊं, एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही चंडीगढ़ में शायद 92 या 3 के आसपास की बात है, he came to perform and I used to stay in adjacent city called Kalka. I was a professor of music then in a government postgraduate college. तो मैं वहाँ रहता था। तो मैंने अचानक से अखबार पढ़ा तो उसमें खान साहब का इंटरव्यू था। तो जो जिस पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था तो वो चंडीगढ़ से थे। तो मुझे एकदम से ये तो था कि खान साहब का प्रोग्राम है अभी 2 दिन बाद, पर वो इतना जल्दी आ जाएंगे ये मेरे को अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि गाड़ी उठाई और चंडीगढ़ पहुंचा। अब चंडीगढ़ कैसे ढूंढूं उनको, मेरे को मालूम भी नहीं था कहाँ रुके हैं। तो मैं वहाँ चला गया जहाँ उनका प्रोग्राम होना था। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उसका शामियाना टेंट वगैरह को सुपरवाइज़ कर रहे थे कि यहाँ खान साहब का प्रोग्राम होना। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने आज वो इंटरव्यू पढ़ा है, मैं खान साहब का शागिर्द हूँ, खान साहब कहाँ ठहरे हैं, कृपया आप बताएंगे। तो उनका जवाब ये था कि एम आई ए पोस्टमैन, मेरा ये काम रहेगा कि मैं ये आपको बताता फिरूं कि वो कहाँ रहे, अगर आप खुद ढूंढो कहाँ पे है वो सारा कुछ। आई वाज जस्ट सरप्राइज। और मैंने खान साहब को बताया भी जाके, मैं कहा खान साहब आपको ढूंढने के लिए हमें ये सब सुनना पड़ा। तो देन आइडिया क्लिक्ड एंड मैंने वो सर्च किया, वो जो पत्रकार थे उनके घर गया। उन्होंने बताया कि वो मैंने उनका इंटरव्यू फलां जगह लिया था। तो वो चंडीगढ़ में उनके एक मित्र थे उनके यहाँ बागड़ी ख़ानदान से, तो वहाँ पे वो ठहरे हुए थे। तो तब यमन जी भी थे साथ में, हिदायत भाई भी थे और अम्मा जी भी थे, और उनसे मिले, खूब गपशप मिली। तो शाम को उन्होंने खाने पे बुलाया जो ऑर्गेनाइज़र थे। तो वो मेरे को बोले खान साहब कि हरविंदर इधर आओ। बोले आज उसने आपको पता नहीं बताया ना आपका, आप जाओ उनको, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप बोलो कि वो खान साहब ने मेरे को भेजा कि आप डिनर के लिए आपको भेजा है। तो मैंने कहा खान साहब मैं कोई हैसियत नहीं रखता, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं कैसे चला जाऊँगा। तो मतलब ऐसी ऐसी होती रहती हैं ज़िंदगी में, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट मैं इतना शर्मीला और इतना सच बताऊं, खान साहब के साथ पूरी ज़िंदगी में रहने के बावजूद मेरे 2 या 3 फ़ोटो हैं उनके साथ। लोगों के मैंने फ़ोटो लिए, कैमरा जो रील वाले कैमरा होते थे या दूसरे होते थे उनको बना के दिए। कैलाश जी उनके एक बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं शिमला से, जब वो शिमला में परी महल में रहते थे उनसे वो सीखते थे। उनके और भी बहुत लोगों के, मेरी हिम्मत नहीं होती थी खान साहब के साथ बैठ करके या खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये चंडीगढ़ के प्रवास के दोनों, और एक बार आप हैरान होंगे कि जब हमारा गंडा बंधन हुआ मेरा, तब भी उसका फ़ोटो भी नहीं है हमारे पास।
तो एक बहुत सिंपलिसिटी और एक बहुत साधारण सी लाइफ को जीने वाले, आजकल तो स्टूडेंट उस्ताद के वो गले में बांध डाल के बोलता है उस्ताद जी एक फोटो ले लेते हैं, जरा एक सेल्फी ले लेते हैं। तो देखिए ये संस्कार की डिफरेंस है पंडित जी, और कुछ नहीं। शिक्षा और संस्कार की बात है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो बस उनको याद करते हैं, उनकी हर चीज़ को याद करते हैं देहरादून में। हाँ, एक बार मैं देहरादून में ही घर में ऊपर छत पे वो शाम को होते थे, वो एक काउच था या एक कॉट पे वो लेटे रहते थे। तो मैंने एक इच्छा जाहिर करी थी उनसे ज़रूर कि खान साहब, अब कब जब हम आते हैं तो कभी कोई शागिर्द होता है, कोई कलकत्ता से आया या कहीं से आया, सारा कुछ, कभी ऐसा मौका पड़ेगा कि हम लोग सब शागिर्दों से, अपने गुरु, आपके शागिर्दों से और गुरु भाई बहनों से हम मिल सकेंगे। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी थी कि मैं कोशिश करूँगा कि देहरादून में एक बार सारा ये यहाँ पे सबको बुलाऊं और सब लोग आपस में मिलें, पता हो कि हमारा परिवार का। और सच पता है, आज मेरे को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इस संसार में इतने इतने बजाने वाले, इतने शागिर्द खान साहब के हैं, और जो अभी ये नेटवर्किंग और ये सारा इसके माध्यम से हमें पता लग रहा है, नहीं तो शायद पता भी ना चलता। तो उसके बाद फिर एक बार मौका पड़ा था जब पंडित अरविंद पारिक जी ने मुंबई में एक कार्यक्रम किया था और जिसमें सब शागिर्दों को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी आया था और शिमला से जो उनके शागिर्द हैं, जलंधर से हैं, वो सब भी आए थे। तब शुजात भाई का एक दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, तो उस दिन शाम को वो था और फिर अगले दिन खान साहब का प्रोग्राम था। जाकिर भाई तबले पे थे। शायद 40 इयर्स ऑफ शागिर्दी ऑफ गुरुजी पंडित अरविंद पारिक जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर एक वो बुक भी रिलीज़ किया था, तो हम लोग विटनेस बने, जा पाए। बड़ी खुशी होती है कि उस समुद्र में से हम भी एक छोटा सा एक कतरा हम भी ले पाए, और ऐसे ही कतरे ना जाने संसार में कहाँ कहाँ बहुत लोग लेके काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए। आप लोग बहुत मेहनत करें, बहुत नाम रोशन करें। और असीम जी का कल कार्यक्रम है, उसके बाद और शागिर्दों के और जो इस घराने से जुड़े हुए हैं उनको मैं बराबर सुनूंगा। और सबसे ज़्यादा मैं ईश्वर का और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मैं हूँ कुछ नहीं, मैं आप जैसा ही हूँ, पर आप लोग, असीम जी ने भी बहुत भारी भरकम शब्द मेरे लिए यूज़ किए। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ असीम जी, और मैं सबको कहना चाहता हूँ मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, आप जैसा ही विद्यार्थी हूँ, और आज भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सितार कैसे बजाया जाता है। ये आपका बड़ा दिल है और बड़ापन है। असीम दा, यू आर ऑन म्यूट, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपसे भी दो कुछ सुनना चाहता हूँ। Before we conclude the session, we would like to listen to all of you. असीम दा, respected। मैं अभी अभी शायद हट गया अभी है। ठीक, अभी ठीक। असल में हाँ, पंडित जी आप हमारे लिए क्या है वो तो मैं कुछ तो वर्णन कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ जिसको हम लोग यादगार के रूप में इस प्रोग्राम का यादगार रूप में रखें, क्योंकि उस्ताद जी अभी आप ही के जरिए हम लोग के पास आएंगे और हमको सुनाएंगे। उस्ताद जी तो हमारे सब कुछ है, और अभी आप जैसे ग्रेट मास्टर्स और गुरु हमारे लिए सब कुछ है। तो आप काइंडली थोड़ा हमको आशीर्वाद कीजिए कि ऐसा कुछ देखिए सुनाइए, उस्ताद जी, ताकि आप हम लोग सब लोगों के मनों में, आपके दिलों में और आपके बीच में हैं। ये हरविंदर शर्मा की कोई वो खासियत नहीं है कि उस्ताद जी मेरे द्वारा दिखाई देते हैं, या मुझे आपके द्वारा भी दिखाई देते हैं। मुझे आप सब के द्वारा जो उस घराने को, उस वादन को बजाते हैं और गाना बजाना करते हैं, उन सब में दिखाई देते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए और बजाता हूँ मैं कुछ। खान साहब का एक गावती का आपने वो सुना होगा, जो तिस्सर जाति में उन्होंने वो तिस्सर जाति में बजाया है। तो मैंने इससे प्रेरणा लेते हुए एक कंपोजिशन मतलब कई रागों में करी इसी पैटर्न के आधार पर। तो जैसे एक नंद में मैंने थोड़ी कोशिश की, तो मैं एक वो बस एक कंपोजिशन आपके लिए वो बजाता हूँ। है तो खान साहब का ही, मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ वो राग के स्वर उस राग से उठा के दूसरे में कर दिए। और बहुत मैं इंस्पायर्ड होता था उनसे, जब वो
5.5 मात्रा का मुखड़ा, 2 मात्रा का मुखड़ा, 1 मात्रा का मुखड़ा, इस किस्म की चीज़ें वो श्लोकत में यूज़ करते थे जो। आप सुन पा रहे हैं सब? जी बिल्कुल, it is very clear, Pandit ji. जी Yes. जी।
क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आपका आशीर्वाद लेके हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का हुआ, और उस्ताद जी को ऐसे हम लोग महसूस किए आपके जरिए कि उस्ताद जी ने हम लोग सबको आशीर्वाद किए आपके जरिए। आप आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना बना के रखिए, और आगे हम लोग इसको और भी आगे ले जाएं। और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे राम भाई बहुत अच्छा एक एफर्ट किया है ताकि हम लोग सब इकट्ठा हो पाए हैं। सपना है कि ये चलते रहे और आप लोग आके हम लोग को थोड़ा सा आगे का रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू शरण जी, थैंक यू असीम जी, राम जी, और शरण तमाम तमाम जो लोग भाई, जुड़े हैं, जो संगीतकार जिनका आशीर्वाद मिला, तमाम मेरे स्टूडेंट्स और बाकी सब देखने वाले, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Pandit ji from ICMC and all of us, बहुत प्रणाम, gratitude and regards for this insightful session. And ये चलते रहे as Dada has said. Before concluding, I will just do a vote of thanks, and we will end this session with Ustad ji's voice and music. So please bear with us for few more minutes. Uh, a sincere thanks and gratitude to all the musicians who shared and will be sharing their insight with us on Ustad Vilayat Khan Sahab and other great musicians. And also to them who will perform for us, all wonderful musicians in the memorable events, which includes Zila Khan ji, Dharamveer Singh ji, Harvinder Sharma ji, our respected Kajol Chatterjee ji and Saponda, Pandit Asim Chaudhary ji, Avarinder Shelikar ji, Rupa Panesar ji, Amjad Bhai, Amjad Hussain ji, Abhik Mukherjee ji, Champa Juardar ji. Also, from 3rd September to 8th September, we are celebrating Pandit Kishan Maharaj ji Memorial Week, where great maestros will join us, including Pandit Puran Maharaj ji, Pandit Sanju Sahai ji, Ustad Akram Khan Sahab, Pandit Arvind Kumar Azad ji, Pandit Ram Kumar Mishra ji. We are from ICMC. We are thankful to you all. Emily Ghosh, the Kathak exponent's involvement and contribution needs special mention here. Also, my thanks to Sri Shoibal Ghosh for reciting the biography of Ustad ji so wonderfully. The entire initiative by ICMC would not have been possible without blessings and inspiration of my spiritual guru, my Guru Maharaj, my parents, and my Sangeet gurus. And last but not the least, support and help from my family members. My heartfelt thanks, regards, and pranams to all. And we will listen to Ustadji's divine voice and music to conclude today's session. Thank you. I will share my screen. Then the movement of this rag is what character is this rag has, and what character that composer, the particular composition in this rag I am playing, that man has, and what character I have. That is my improvisation at last. It's a very interesting thing. One rag, 10 people can play and sing in same night of the same composer, but you will come to know that everybody gave different color and style and the stroke and brush and the use on that canvas and his own personality, his own improvisation on that portrait is different, and I like this.
Pranam.